Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, as you are knowing that we are just discussing the ecology, that is the environmental science, or you can say environmental education. And in the last classes, we have seen, just in the last week, we have seen that the study of our relationship between organisms and its surrounding, its habitat is known as ecology, and it combines two words in fact, which are oikos and logos. Oikos means to dwell or habitat, रहने का जो हमारा स्थान होता है, that is oikos, and logos, that is to study or know, that is the branch of science which deals about organisms and its relation with its environment, that is surrounding. यह हम लोगों ने देखा अभी तक इकोसिस्टम के, हम लोगों ने दोनों तरीके के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया बच्चों लास्ट क्लासेस में, which are abiotic and biotic components. Okay, and in the last class we have seen the interrelationship of the at various trophic level of a particular ecosystem on the basis of nutritional requirement. अपने खाने पीने की जरूरतों के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड रहते हैं. ओके, और इस तरीके से एक चेन बन जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिकम्पोजर्स, विच आर सेड टू बी एज फूड चेन. Since we know, children, that the biotic components are producers, consumers, and decomposers. Producers are green plants because they are preparing their own food material through photosynthesis, as you have studied in 11th class. Then the consumers are heterotrophs animals which are further divided into primary, secondary, and tertiary consumers, which you have seen herbivores, carnivores, and top carnivores, and finally the decomposers, bacteria and fungi, which just convert the dead complex and organic material into inorganic material. So my dear kids, after completing the food chain and food web, now we are going to start the ecological pyramid. लेकिन हमें एक चीज जरूर समझना पड़ेगा कि कई फूड चेन्स, एक ही पर्टिकुलर इकोसिस्टम के कई फूड चेन्स और उनके ट्रॉफिक लेवल्स आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं बच्चों, on the basis of their nutritional requirement. That's why a web, a network like structure is formed, that is well known as food web. तो फूड वेब और फूड चेन में ये अंतर हम लोगों ने देखा था कि फूड चेन एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर्स तक चलने वाली एक चेन होती है. ग्रासलैंड में हम लोगों ने देखा था ग्रीन ग्रासेस, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, देन स्नेक्स. ओके, ग्रीन प्लांट्स, गोट, then jackal, then lion. But in forest ecosystem, in pond ecosystem, in grassland ecosystem, we have seen the network also, that is formed due to the interconnection of various trophic level of different food chains on the basis of their nutritional requirement. चूंकि अलग अलग फूड चेन्स के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स भी आपस में जुड़े होते हैं न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप के आधार पे, जिससे एक नेटवर्क बन जाता है बच्चों, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज फूड वेब. नाउ सी द नेक्स्ट important topic of this particular chapter ecology, that is the ecological pyramid. Okay, an ecological pyramid is the graphical representation designed to show the number of organisms, energy relationships and biomass of an ecosystem. देखिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बच्चों. इकोलॉजिकल पिरामिड इज द सब्जेक्ट ऑफ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बातें हैं क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, जिसमें कि हम किसी भी इकोसिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिलेशनशिप, किस तरीके से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्सरी कंज्यूमर में एनर्जी जा रही होती है. बायोमासेस, जो बायोमास है वो डिफरेंट लेवल पर किस तरीके से उनका वेट है. तो these are the ecological pyramids which are basically the graphical representation. ecological pyramid बच्चों graphical representation होता है जो प्रोड्यूसर से लेके डिकम्पोजर्स तक डिफरेंट स्पेक्ट्रम पर हमें पिरामिड्स दिखाता है, लाइक पिरामिड ऑफ बायोमास,
pyramid of number and pyramid of energy. इकोलॉजिकल पिरामिड्स बच्चों इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं, सीधे और उल्टे दोनों तरीके की पिरामिड्स हो सकते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे आ जाएगी क्लास में कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होता। आप देखेंगे आगे चल के आएगी चीजें। Here you are seeing that succeeding labels in the pyramids represent the dependence of the organisms at a given level on the organisms at lower level। क्या समझा आपने? जो सक्सीडिंग लेवल होगा किसी भी पिरामिड में वह रिप्रेजेंट करेगा द डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द गिवन लेवल ऑन द ऑर्गेनिज्म एट लोअर लेवल। यानी उसके नीचे वाला यानी सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वह प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा। यह पिरामिड्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। जो भी सक्सीडिंग लेवल आएगा, अगर टर्सरी कंज्यूमर आ रहा है तो उसके लोअर लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसका मतलब कि टर्सरी कंज्यूमर की जो डिपेंडेंसी होगी फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे होगी। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग हियर दैट द सक्सीडिंग लेवल्स इन द पिरामिड represent the dependence of the organisms at a given level on the organisms at lower level। नीचे वाले लेवल वाले ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करेगा। सो हियर यू आर सीइंग दैट इकोलॉजिकल पिरामिड आर बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स जो है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स, इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है बच्चों दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी वेल नोन एज इकोलॉजिकल pyramids। And here you are seeing my dear kids that three types of ecological pyramids can usually be distinguished, namely pyramid of numbers, pyramid of biomass and pyramid of productivity, that is pyramid of energy। तो पहले हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। ये देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स फूड चेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के थ्रू भी हम फूड चेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के उन्हीं को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, फूड चेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इकोलॉजिकल पिरामिड बाय अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स डायग्रामेटिकली। यहाँ पर जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में या डायग्रामेटिकली तरीके से जो है ऑर्गेनिजम्स को उनके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे रख के पिरामिड तैयार करेंगे तो एक प्रकार से यह फूड चेन को भी दिखा रहा होगा। देख रहे हैं आप बच्चों यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स रैट्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स स्नेक्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स दैट इज हॉग ईगल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स जो है यह एक फूड चेन को भी दर्शा रहे होते हैं और इसको अगर हम ग्राफिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स and these are different trophic levels। okay, troughs जानते हैं आप, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स वर्ड्स आपने सुना है। you are knowing children that biology is the subject of terminology, so troughs means nutrition। so this ecological pyramid is just based on the food chain because the interrelationship on the basis of their nutritional requirement we are discussing so many time। I am telling you children that the interrelationship between different trophic level of a food chain on the basis of their nutritional requirement। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख भी रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, फिर रैट्स, फिर स्नेक्स और फिर हॉक। तो इस तरीके से आपने देखा यह एक इकोलॉजिकल पिरामिड को दर्शा रहा है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है। ओके, एंड नोटिस दैट देयर आर मेनी मोर प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स की तुलना में प्रोड्यूसर्स हमेशा ही ज्यादा हैं। ईच ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर एनर्जी इन द सेम वे। यहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा होगा बच्चों। अभी आप आगे लॉ ऑफ 10% देखेंगे कि किस तरीके से 10% प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी जा रही होती है। तो so here we just discussed the salient features of ecological pyramids, that the food chains can also be represented by ecological pyramid। This one is the main theme, क्योंकि आप यहाँ पर ecological pyramids के थ्रू
फूड चेन को भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं बच्चों। Pyramid of number. Let us start the first kind of ecological pyramid, that is pyramid of number. पहले हम लोग pyramid of number से start करते हैं, which are maybe either upright or inverted, या दोनों ही तरीके का हो सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको बच्चों। देखिए, pyramid of number is the graphical representation of number of individuals per unit area of various trophic level। किसी भी ट्रॉफिक लेवल, किसी भी इकोसिस्टम में जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, या यूं कहें कि ग्रीन प्लांट्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, देन टर्सरी कंज्यूमर्स टॉप कार्निवोर्स। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंडिविजुअल्स के जो नंबर होंगे उनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स टेंड टू फॉर्म द बेस। बेस पर बहुत लार्ज नंबर रहेगा प्रोड्यूसर का, और जबकि लोअर नंबर ऑफ टॉप कार्निवोर्स ऑक्यूपाई द टिप। आप समझ सकते हैं, अगर एक फॉरेस्ट की ही बात करें तो लैक्स ऑफ प्लांट्स हैं, लाखों करोड़ों प्लांट्स हैं, और उसके बाद उन पे डिपेंड करने वाले अगर हम बात करें रैट्स की या गोट्स की तो उनकी संख्या कम है, उनसे भी कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, और सबसे कम लायन या टाइगर की, दैट इज टर्सरी कंज्यूमर्स। तो जैसे जैसे हम नंबर्स के आधार पे लोअर नंबर आगे की तरफ टॉप कार्निवोर्स की तरफ चलेंगे, नंबर वहां पे लोअर होता चला जा रहा है। तो दिस वन शोज द अपराइट pyramida number. Okay, so see here both the kind of pyramid of number I am just demonstrating you children, that pyramid of numbers shows number of organisms at each trophic level per unit area of ecosystem। नोट्स बनाते समय आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, pyramid of number are the ecological pyramid which shows the number of organisms at each trophic level per unit area of ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम के, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम हो या डेजर्ट इकोसिस्टम, वहां पर यूनिट एरिया में जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म्स के नंबर आएंगे एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज सेड टू बी, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ एक एग्जांपल देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये 10,000 फ्रेश वाटर श्रिम्प्स, 1000 ब्लिक, 100 पर्स, 10 नॉर्दर्न, ये एक तरीके से लेक का है, विक्टोरिया लेक का एक दिखाई दे रहा है। विक्टोरिया लेक का एक पिरामिड ऑफ नंबर बना हुआ है। पिरामिड शेप्स इज द मोस्ट कॉमन, बट समटाइम्स द शेप में बी इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप, कभी कभी ये इन्वर्टेड भी हो जाता है। यहाँ देखिए एक ही प्रोड्यूसर, अगर एक पेड़ की बात करें, एक ट्री की, तो एक पेड़ है और इसके ऊपर देखिए हर्बीवोर्स कई 8-10 बर्ड्स डिपेंड कर रहे हैं, और जबकि उनको खाने वाला जो हॉक है या ईगल है वो एक है अगेन। तो इस तरीके से यह स्पिंडल शेप बन जाता है। यह भी पिरामिड ऑफ नंबर है लेकिन यह स्पिंडल शेप है। यहाँ पर मैंने अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर दिखाया। ज्यादातर पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट ही होते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि पिरामिड ऑफ नंबर में बी ऑफ इन्वर्टेड आल्सो, या इन्वर्टेड टाइप का भी हो सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टेड टाइप का आप, जिसमें कि एक पेड़ है, इसके ऊपर डिपेंड करने वाले बर्ड्स एक से ज्यादा, और फिर उनके ऊपर डिपेंड करने वाले पैरासाइट्स उससे ज्यादा, और फिर ये हाइपर पैरासाइट्स। तो इस तरीके से या नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हैं आप नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स। अलग अलग ट्रैफिक लेवल पे बच्चों यहाँ पर नंबर्स हम देख रहे हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, तो यह बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। दैट इज बेसिकली इन्वर्टेड पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ नंबर आर आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। इससे हमें पता चलता है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है यह अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, दोनों तरीके का, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी। तो ये पहला पिरामिड था इकोलॉजिकल पिरामिड, पहला, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। सेकेंड वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास। ध्यान दीजिएगा, अब हम बायोमास की बात कर रहे हैं। बायोमास, pyramid of biomass is the graphical representation of biomass present per unit area of different trophic levels। सॉरी, आप जानते हैं बच्चों कि बायोमास दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज बायोमास, एंड pyramid of biomass is the graphic representation of biomass
present per unit area of different trophic levels with producers at the base and the top carnivores at the top. टॉप पे जो रहेगा वह एकदम टिप एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे टॉप कार्निवोर्स रहेंगे और जबकि प्रोड्यूसर्स बेस पे रहेंगे। अगर उनकी हम बायोमास के रेफरेंस में बात करें, देख भी रहे हैं आप, बायोमास इज कैलकुलेटेड बाय द मास ऑफ ईच इंडिविजुअल into number of individuals at each traffic level, that is represented in gram per gram to the minus 2 or gram to the minus 3, that is per gram square or per gram cube. Okay, so here you are seeing the biomass. This is the plant, green plants producers. Biomass is represented here 1000 kilogram. This one is herbivores. Okay, primary consumers depending upon the directly depending upon the producers for their nutritional requirement. और यहाँ पर बायोमास कितना देख रहे हैं बच्चों आप, 100 किलोग्राम। अगले ट्रॉफिक लेवल में हम चलते हैं। दीज आर द प्राइमरी कार्निवोर्स या कार्निवोर्स यू कैन से, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और यहाँ पर बायोमास हो गया 10 किलोग्राम। और जबकि टॉप कार्निवोर्स पे जब चलेंगे तो बायोमास हो गया 1 किलोग्राम, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मास per unit area. So we are seeing here the pyramid of biomass in upright manner. Now see here the pyramid of biomass. The biomass is defined as the total weight of dry matter. मैंने बताया आपको पीछे भी कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो टोटल वेट होता है ड्राई मैटर का या ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोड्यूस्ड होता है पर यूनिट एरिया, दैट इज बायोमास। और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यहाँ देख रहे हैं आप pyramid of biomass. Okay. Pyramid of numbers shows the relative number of individual organisms at each trophic level, whereas pyramid of biomass defined as the total weight of dry weight present in the ecosystem at any time. और जब उस पर बेस्ड हम पिरामिड बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोर्स, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स और फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स की बायोमास को लेकर चलेंगे। जबकि फिर से वही एक ट्री की बात अगर करें और उस पर डिपेंड बर्ड्स की और फिर इंसेक्ट्स की बात करें तो हमें इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास का मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको एक खास बात पता चल रही है कि अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं या पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हमें दोनों तरह के पिरामिड दिखाई देते हैं बच्चों, दैट इज इन्वर्टेड एज वेल एज अपराइट, इन्वर्टेड भी और अपराइट भी। लेकिन अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो एनर्जी का जो पिरामिड रहता है बच्चों वो हमेशा ही अपराइट रहता है। ध्यान से देखिएगा इसको, पिरामिड ऑफ एनर्जी। Okay, what is the definition? It is the most important pyramid, ecological pyramid. जो बाकी दोनों पिरामिड्स हैं बायोमास और नंबर, उनकी तुलना में pyramid of energy is much more important children for your exam. So listen very carefully. First of all, the definition. An energy pyramid is a graphical model of energy flow in a community. The different level represent different groups of organisms that might composed a food chain. किसी फूड चेन के अंदर हमने देखा प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। सो द एनर्जी ट्रांसफर विल आल्सो बी गोइंग अकॉर्डिंगली। जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा बच्चों वह भी फूड चेन के अकॉर्डिंग होगा और हर एक सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल पर एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। So my dear kids, the pyramid of energy is always upright. As I have already told you कि pyramid of energy जो है हमेशा सीधा ही होगा, as it follows the second law of thermodynamics, which states that as energy is transferred or transformed, more and more of it wasted. Energy can neither be created nor destroyed. It can just be transferred or transformed from one form to another form. And here you are seeing in the pyramid of energy that it is always upright. Okay, so the energy transfer occurring from producers to herbivores, then carnivores, then top carnivores in a sequential manner children. यह जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा बच्चों, इसको आप अच्छे से समझिएगा। जो यह एनर्जी का ट्रांसफर होगा प्रोड्यूसर से लेकर फर्दर आगे डिकम्पोजर्स तक, पूरे फूड चेन को जानते हैं आप, तो वहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा दैट विल बी गोइंग ऑन इन अ सीक्वेंशियल वे and the pyramid of energy. Now see here, producers, पहले आप इसको देख लीजिए, producers 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी। और अब
अगले स्टेप में प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास केवल इसका 10% जाएगा, यानी 1000 किलो कैलोरी। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में फिर इसका 10%, दैट इज 100 किलो कैलोरी। एंड फाइनली इन टर्सरी कंज्यूमर्स अगेन इसका 10%, दैट इज 10 किलो कैलोरी। तो दिस वन इज द लॉ ऑफ 10% चिल्ड्रन। इसी नियम को बच्चों 10% का नियम या लॉ ऑफ 10% कहते हैं। लेटर ऑन आई विल डिस्कस इन डिटेल। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी कंज्यूमर is just confined with the 10% from the previous level, previous trophic level. Okay, so pyramid of energy is the graphical representation of flow of energy through each trophic level of food chain over a fixed time period. ये एक फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं जिनमें एनर्जी के ट्रांसफर को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज आल्सो नोन एज पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। शुरुआत में ही मैंने बताया था बच्चों आपको कि पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी, दैट इज सेड टू बी एज पिरामिड ऑफ एनर्जी। And the input of solar energy may be indicated as an extra layer at the base. इसके भी नीचे एक सोलर एनर्जी का इंडिकेशन दिखा सकते हैं आप। एज यू नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन ही अल्टीमेट सोर्स है और सन के एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स ने ट्रैप किया हुआ है और अपना खाना बनाया है, कार्बोहाइड्रेट को एसिमिलेट किया हुआ है। दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर सेड टू बी एज प्रोड्यूसर्स। इसीलिए बच्चों ग्रीन प्लांट्स को यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन ऑटोमेटिकली एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड थ्रू प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। दैट्स व्हाई प्राइमरी कंज्यूमर्स आर सेड टू बी एज herbivores. Secondary consumers directly depend upon primary consumers for their nutritional requirement. That's why they are said to be as first primary carnivores or carnivores. And the tertiary consumers are the top carnivores because they depend upon the secondary consumers for their nutritional requirement. यहाँ पर एक और खास बात आप लोगों ने देखा बच्चों कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो कि हमेशा अपराइट होती है, इसको पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। और प्रोड्यूसर के भी बेस पर एक सन या सोलर एनर्जी इंडिकेशन होता है जो कि दर्शा रहा होता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो द पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू द लॉ ऑफ 10%। ये देखिए लॉ ऑफ 10%, the 10% law for the transfer of energy from one trophic level to the next was introduced by Raymond Lindemann. Raymond Lindemann was the scientist who proposed the law of 10% in 1942, 1942 में। ओके, 1942 में इन्होंने रेमंड लिंडेमैन ने जो है लॉ ऑफ 10% दिया बच्चों और बताया in each and every ecosystem, in each and every trophic level, in each and every food chain, the energy transfer occurs from producers to decomposers or tertiary consumers only 10% from the previous trophic level। यानी किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर से लेके टर्सरी कंज्यूमर्स तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से केवल 10% का होता है। दैट इज वेल नोन एज लॉ ऑफ 10%। इट मीन्स only 10% energy goes from the previous trophic level to the next trophic level in an ecosystem, either it is pond or grassland. That's why this law is said to be as law of 10%, which was proposed by Raymond Lindemann. तो रेमंड लिंडेमैन ने जो 10% का लॉ दिया बच्चों, इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि जो वेजिटेरियन पर्सन्स होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन पर्सन्स की तुलना में ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। भले हमें मिसकंसेप्शंस होते हैं कि नॉन वेजिटेरियन से हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन आप इस लॉ ऑफ 10% से देख रहे हैं अगर हम नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर नॉनवेज के थ्रू हमें अगला 10% एनर्जी मिल रहा होगा, जबकि ग्रीन प्लांट से उनके अंदर 10% आया है। और जब हम वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स या वेजिटेबल का 10% यानी काफी ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी और पॉजिटिविटी मिलती है बच्चों। तो यह शो होता है लॉ ऑफ 10% से, which was proposed by Raymond Lindemann. So 10% law of energy transfer was proposed by Raymond Lindemann in 1942. During the transfer from organic food
from one trophic level to the next, only about 10% of the energy from the organic matter is stored as flash. The remaining is lost during the transfer, broken down in respiration, or lost in incomplete digestion by higher trophic levels. और जबकि जो बाकी एनर्जी होती है बच्चों, वह रेस्पिरेशन के फॉर्म में, इनकम्प्लीट डाइजेशन के फॉर्म में हाई ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू कंज्यूम हो जा रही होती है. तो दिस वन इज द लॉ ऑफ 10%. सो माय डियर किड्स, in today's class, we have seen the law of 10% proposed by Raymond Lindemann and also seen various kind of ecological pyramids. We have seen that the graphical representation of various trophic level of an ecosystem is known as ecological pyramid. It may be based on the number, may be based on the biomass, or may be based on the energy. So ecological pyramid are the graphical representation of the interrelationship of different trophic level of a particular ecosystem. It is either pyramid of number or pyramid of biomass, and the third one is pyramid of energy or pyramid of productivity. बच्चों यहाँ नोट करने वाली बात यह होगी कि pyramid of biomass and pyramid of number are either inverted or upright. Both the cases we have seen, but the pyramid of energy is always upright due to the law of 10%, which says that only 10% energy comes in the next trophic level from the previous trophic level in an ecosystem. That's why this law is said to be as 10%, and it indicates always the upright ecological pyramid. So my dear kids, in the next class, we shall just start the next topic related to ecology. Thank you very much.